राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, शिक्षा की राह पे हमारे कदम चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आरिफ बादशाह, श्री एल सी टप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुद्दगुदुरु। तो मैं आज आप लोगों के लिए 9वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो उस पाठ को देखने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप लेकर आते हैं। चलिए। ಆಗುಂಬೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ. ಆಗುಂಬೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ವಿತೀಯ. ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ ನೀವು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಕಾಶ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯನ ದೃಶ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜೀವಾಳ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗುಂಬೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಸಡಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆಗುಂಬೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 348 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಲ ತೀರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 102 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಾದಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 285 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗುಂಬೆಯ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 2314 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗುಂಬೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಶಾಶ್ವತ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬರೀ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಆಗುಂಬೆಯು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುಂಬೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗುಂಬೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಾರಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗುಂಬೆಯು ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ತವರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಉರಗ ತಜ್ಞ ರೋಮುಲಸ್ ವಿಟೇಕರ್ ಆಗುಂಬೆಯನ್ನು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೇ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯಶ್ರೀಯನ್ನು ನೀವು ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಆಗುಂಬೆಯ ಘಟ್ಟಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿನ 200 ಅಥವಾ 300 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಗುಂಬೆಯ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಜಿಗಣಿ ಜಾತಿಯ ಇಂಬಳು ಎಂಬ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಕನ ಜಲಪಾತ. ಆಗುಂಬೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕನ ಜಲಪಾತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜಲಪಾತ. ಈ ಜಲಪಾತವು ಭಾರತದ 11ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವು 850 ಅಡಿ ಎತ್ತರಗಳಿಂದ ಹಾಲಿನಂತೆ ಇರುವ ಜಲವು ಧುಮುಕುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ಸೀತಾ ನದಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಒನಕೆ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ. ಒನಕೆ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ ಆಗುಂಬೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜಲಪಾತ. ಒನಕೆ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತವು ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूरदಲ್ಲಿದೆ. अच्छा, तो फिर हमने यहाँ पे जो कर्नाटक में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जो स्थान है कौन सा है वो आगुंबे, उसको हमने यहाँ पे देखा है ना. हाँ, तो उसकी जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗುಂಬೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಗುಂಬೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. हाँ, तो फिर ऐसे ही हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा बारिश पड़ने वाला या वर्षा होने वाला जो स्थान है उसका नाम क्या है? हाँ, क्या है उसका नाम? मेघालय है ना. मेघालय का जो स्थान, जैसे कि चेरापूंजी हम बोलते हैं, चेरापूंजी पाठ को हम आज 9वीं कक्षा में जो आप लोगों के लिए रखा गया है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो पाठ का नाम क्या है? चेरापूंजी से आया हूँ. क्या है पाठ का नाम? चेरापूंजी चेरापूंजी से आया हूँ. ये पाठ हम यहाँ पे देखेंगे. इसके लेखक हैं, कौन इसके लेखक हैं? प्रदीप पंत. प्रदीप पंत है ना. प्रदीप पंत इस पाठ के लेखक हैं, है ना. पाठ को पढ़ने से पहले अब हम यहाँ पे जो चेरापूंजी से आया हूँ इस पाठ के जो लेखक हैं प्रदीप पंत जी, इनका परिचय हम यहाँ पे पाएंगे, है ना. तो पहले क्या देखते हैं हम? लेखक का परिचय. लेखक का परिचय. हाँ, लेखक परिचय में पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे नाम. तो उनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? प्रदीप पंत. प्रदीप पंत इनका नाम है ना. फिर इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ यहाँ पे 24 अप्रैल 1941 में इनका जन्म हुआ. तो स्थान है, इनका जन्म स्थान है कहां पे? इनका जन्म हुआ जो उत्तराखंड के, है ना, लखनऊ के हल्द्वानी कहाँ है ये? लखनऊ. कहाँ पे है ये? लखनऊ. तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना. उत्तराखंड के लखनऊ के हल्द्वानी गांव में इनका जन्म हुआ. और पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं. कितने? इनके 6 उपन्यास यहाँ पे प्रकाशित हुए हैं. और साथ साथ पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का जो संकलन है, क्या है वो? न्याय मत्तु इतर कथेगलु. न्याय मत्तु इतर कथेगलु जो शीर्षक इनका प्रकाशित हुआ है. कन्नड़ में भी इनके जो रचनाएं हैं उनका अनुवादित जो रूप यहाँ पे उनका जो संकलन है वो क्या है? न्याय मत्तु इतर कथेगलु.
फिर पंत जी के देश विदेश के यात्राओं का संस्मरण का 4 संकलन भी हम यहाँ पे देखते हैं। अब इन्हें जो मिले प्रमुख पुरस्कार जो है, इनके प्रमुख पुरस्कार है, जैसे कि हाँ यूरोप भ्रमण पुरस्कार, क्या है वो, यूरोप भ्रमण पुरस्कार। हाँ, फिर देखते हैं यहाँ पे प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, प्रेमचंद हाँ अनुशंसा पुरस्कार। फिर देखते हैं साहित्यिक कृति पुरस्कार, साहित्यिक कृति पुरस्कार, फिर हाँ साहित्यकार सम्मान, और है व्यंग्यश्री सम्मान। क्या है, व्यंग्यश्री सम्मान, आदि पुरस्कारों से प्रदीप पंत जी अलंकृत हैं। कौन कौन से हैं वो, जैसे मैं बताया आप लोगों को, यूरोप भ्रमण पुरस्कार, प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, फिर साहित्यिक कृति पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, व्यंग्यश्री सम्मान आदि पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। कौन, प्रदीप पंत जी। हागाದ್ರೆ मतलब ಈ ಪಾಠ ಯಾವುದು, ಚೇರಾಪೂಂಜಿ से आया हूं, ಚೇರಾಪೂಂಜಿ से आया हूं ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಇವರ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್, ಇವರ ಜನ್ಮ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 1941ರಂದು ಇವರ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಲಖನೌನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು ಹಲ್ದ್ವಾನಿ, क्या है वो, ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವೆ। ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕಲನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದದು, हाँ वो है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे न्याय ಮತ್ತು इतर कथेಗಳು, न्याय ಮತ್ತು इतर कथेಗಳು जो कन्नड़ में उसका अनुवादित रूप है। अब ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂತಹವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸನ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ यूरोप भ्रमण पुरस्कार, क्या है वो, यूरोप भ्रमण पुरस्कार, प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, फिर साहित्यिक कृति पुरस्कार, साहित्यिक कृति पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, फिर व्यंग्यश्री सम्मान आदि पुरस्कार। ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಇವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅವರು। ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ, है ना, समझ गए छात्र? हाँ, तो फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे लेखक का परिचय यहाँ पे हमने देख लिया। अब जो ये पाठ जो है चेरापूंजी से आया हूँ, ये जो प्रदीप पंत जी से रचित चेरापूंजी से आया हूँ, ये पाठ जो है ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है ये, यात्रा वृत्तांत है। तो फिर यात्रा वृत्तांत का अर्थ है यहाँ पे, जैसे कि हम कोई भी एक विशेष स्थान
या यात्रा पे हम जाते हैं तो उस यात्रा को जैसे हमने वहां पे देखा, यानी कि हमारे जो अनुभव है उसको हम यथावत जो लेखन के रूप में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಲೇಖನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು प्रवास कथन ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। समझ गए ना? तो वैसे ही एक यात्रा वृत्तांत यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। कौन सा है वो? चेरापूंजी से आया हूँ। क्या है वो? चेरापूंजी से आया हूँ। ये जो प्रदीप पंत जी से रचित है। तो इस पाठ का आशय क्या है? यानी यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। यात्रा जब हम करते हैं तो उस प्रदेश का यानी कि उस प्रादेशिक स्थान का ज्ञान हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ। और लोगों का रहन सहन, ಜನರ रहन सहन और ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯೋ का ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಸವಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ प्रत्यक्षವಾಗಿ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು पढ़ते प्रत्यक्ष उसका अनुभव हम यहाँ पे पा सकते हैं। अब इस पाठ द्वारा, कौन सा पाठ है? चेरापूंजी से आया हूँ। इस पाठ के द्वारा छात्र यहाँ पे क्या करते हैं? चेरापूंजी की है ना, चेरापूंजी का जो चेरापूंजी की जो विशेषता है उसको ये उसका ज्ञान यहाँ पे बच्चे या छात्र प्राप्त करेंगे। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚೇರಾಪೂಂಜಿ या ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ, ಆ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ आಗಿದೆ। समझ गए ना? हाँ, तो फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें आने वाले कुछ प्रमुख शब्दार्थ जो है उनको हम देखेंगे। क्या है वो? शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ हम यहाँ पे देखते हैं जो कि इसमें आए कुछ नए जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे पहला है यहाँ पे, पहला शब्द है उमड़ घुमड़। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ शब्द का अर्थ है चारों ओर से घिरना। क्या है? चारों ओर से, चारों ओर, सुत्तलू, चारों ओर से घिरना। यहाँ पे घिरना का अर्थ है आवरिसी। घिरना, सुत्तलू आवरिಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, चारों ओर से घिरना यानी कि एकत्रित होना, यानी कि छा जाना, आवरिसलपडु, है ना? हाँ, फिर दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द यहाँ पे है हरितिमा। क्या है वो? हरितिमा। क्या है? हरितिमा। हरितिमा का अर्थ है यहाँ पे हरियाली यानी कि हरापन। हरियाली, हरियाली अथवा हरापन। हरापन या हरियाली हम उसको बोलते हैं अच्छा ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ। क्या है वो? अच्छा ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಹರಿತಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर तीसरा जो शब्द है यहाँ पे जो दिया गया दरख्त। क्या है वो? दरख्त। क्या है? दरख्त का अर्थ है पेड़। दरख्त का अर्थ क्या है? पेड़ अथवा वृक्ष। पेड़ अथवा वृक्ष, ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು दरख्त ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर चौथा शब्द है, चौथा दिया गया यहाँ पे पटा मीन्स भरा। पटा, पटा का अर्थ क्या है? भरा। भरा का अर्थ ತುಂಬಿದ। भरा अल्वा ತುಂಬಿದ। फिर पांचवा शब्द है बूंदाबांदी। क्या है वो? बूंदाबांदी।
हाँ, बूंदाबांदी का अर्थ है यहाँ पे वर्षा, बूंदाबांदी यानी कि वर्षा। और एक अर्थ यहाँ पे दिया गया है बादलों से गिरने वाली जल की बूंदे। ಮೋಡ, ಬಾದಲ್ का अर्थ क्या है ಮೋಡ, ಮೋಡಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸುರಿತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಯ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೂಂದಾಬಾಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ। फिर छठा शब्द है, छठा शब्द यहाँ पे जो दिया गया वो है खपत। क्या है वो? खपत। खपत का अर्थ यहाँ पे दिया गया माल की बिक्री। क्या है वो? माल की बिक्री, ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ, माल की बिक्री यानी कि वस्तुಗಳ माराट। फिर सातवां शब्द है यहाँ पे, सातवां शब्द जो दिया गया वो है पन बिजली। क्या है? पन बिजली। पन मतलब पानी, हाँ, बिजली, पन बिजली। पन बिजली का अर्थ क्या हो गया फिर? हाँ, जल विद्युत। क्या है वो? जल विद्युत, जल विद्युत। पन बिजली का अर्थ क्या है? जल विद्युत। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ पन बिजली ಅಂತಂದ್ರೆ जल विद्युत ಅಂತ ಹೇಳಿ। फिर आठवां शब्द है, आठवां शब्द क्या है यहाँ पे? जैसे कि दिया गया है यहाँ पे निहारना। क्या है? निहारना, निहारना। निहारना शब्द का अर्थ है यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना। क्या है? ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान पूर्वक देखना। समझ गए ना? हाँ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಹಾರನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। समझ गए ना? हाँ, फिर हाँ, फिर नौवां शब्द है वो है कुहरा। क्या है वो? कुहरा, कुहरा। कुहरा का अर्थ है यहाँ पे धुंध। क्या है? धुंध, मंदವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, है ना? हाँ, फिर अंचल का शब्द, 10वां जो शब्द है अंचल। क्या है वो? अंचल। अंचल का अर्थ है यहाँ पे प्रांत। अंचल का अर्थ क्या है? प्रांत। अंचल शब्द का अर्थ ये हागाದ್ರೆ प्रांत्य, है ना? हाँ, फिर 11वां शब्द है, 11वां शब्द जो दिया गया है यहाँ पे तमाम। क्या है वो? तमाम। तमाम का अर्थ है सारा, संपूर्ण, ಎಲ್ಲ, तमाम, समस्त। फिर 12वां शब्द जो दिया गया वो है सौदा। क्या है वो? सौदा। हाँ, सौदा यानी कि क्रय विक्रय की वस्तु। क्या है? क्रय, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय की वस्तु, की वस्तु, क्रय विक्रय की वस्तु या ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर यानी कि हाँ, 13वां शब्द है, 13वां शब्द दिया गया बेहिचक। क्या है वो? बेहिचक, बेहिचक। बेहिचक का अर्थ है यहाँ पे निसंकोच। क्या है वो? निसंकोच, निसंकोच। बेहिचक का अर्थ क्या है? निसंकोच। बेहिचक का अर्थ क्या है? निसंकोच, निसंकोचವಾಗಿ, है ना? ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಬೇಹಿಚಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर
14वां शब्द कितना है हमें 14वां शब्द जो दिया गया मोड़। मोड़ मोड़ का अर्थ है यहाँ पे रास्ते आदि का घुमाव का स्थान। रास्ते रास्ते आदि का रास्ते आदि का क्या है घुमावदार। क्या है घुमावदार। घुमावदार हाँ स्थान। घुमावदार स्थान है ना। तो इसका अर्थ हो गया तिरु। क्या है जो राह में जो तिरु होता है ना, हाँ उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे मोड़ कहते हैं। समझ गए ना। मोड़ का अर्थ आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। हाँ फिर देखते हैं हम यहाँ पे जैसे कि प्रपात। क्या है 15वां शब्द क्या है प्रपात। हाँ प्रपात का अर्थ यहाँ पे ऊंचे स्थान से गिरने वाली जलधारा। ऊंचे स्थान से ऊंचे स्थान से ऊंचे स्थान से ऊंचे स्थान से गिरने वाली जलधारा। क्या है गिरने वाली जलधारा। जलधारा ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಲದ ಧಾರೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ है ना। हाँ फिर जो 16वां शब्द है 16वां शब्द बेरोक टोक। बेरोक टोक बेरोक टोक है ना। बेरोक टोक है बिना किसी रुकावट के। बिना किसी रुकावट के बिना किसी रुकावट के। समझ गए ना। बेरोक टोक बिना किसी के रुकावट के बिना किसी रुकावट के ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತಹದನ್ನು ನಾವು बेरोक टोक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। समझ गए ना। हाँ तो इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों का परिचय हमने यहाँ पे पा लिया। ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ। कौन कौन से हैं वो? पहला जो था उमड़ घुमड़। उमड़ घुमड़ का अर्थ क्या है चारों ओर से घिरना। चारों ओर से घिरना। दूसरा क्या है हरितिमा का अर्थ है हरियाली या हरापन। हरियाली यानी हरापन ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ। फिर तीसरा जो शब्द क्या है दरख्त। तीसरा क्या है दरख्त। इसका अर्थ है पेड़ या वृक्ष। ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮರ ಅಥವಾ वृक्ष। फिर चौथा कटा। कटा यानी कि भरा तुम्बिदा। पांचवा बूंदा बांदी है ना। तो इसका अर्थ है वर्षा। बादलों से गिरने वाले जल के बूंदे। जल की बूंदे जो होती है उसे वर्षा कहते हैं। फिर खपत यानी कि माल की बिक्री। खपत का अर्थ क्या है माल की बिक्री ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ। वस्तुಗಳ माराट। फिर सातवां जो शब्द है पन बिजली। पन का अर्थ है पानी यानी कि जल। जल से उत्पादित या जल से उत्पन्न होने वाली बिजली जो है वो है जल विद्युत कहलाती है। क्या है वो जल विद्युत। फिर निहारना का शब्द है ध्यान पूर्वक देखना। ध्यान मग्नरागी ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ निहारना आस्वादिಸುವುದು बोलते हैं। फिर तुहरा का अर्थ है धुंध। यहाँ पे तुहरा का अर्थ क्या है धुंध। धुंध का अर्थ है मंदवायुतः। अंचल प्रांत। अंचल का अर्थ क्या है प्रांत प्रांत्य। तमाम सारा। तमाम मतलब सारा सारा सगटು ಎಲ್ಲದು ಅಲ್ವಾ पूर्ण संपूर्ण समस्त। फिर सौदा क्रय विक्रय
ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಯಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೌದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. बेहिचक का अर्थ है निसंकोच. बेहिचक का अर्थ क्या है? निसंकोच, निसंकोचा. मोड़ का अर्थ है रास्ते आदि का घुमावदार स्थान. रास्ते, रस्तेಯ ಅಥವಾ ದಾರಿಯ ಯಾವುದು ತಿರುವು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, घुमावदार ತಿರುವು, ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತಿರುವನ್ನೇ ನಾವು ಮೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. फिर प्रपात का अर्थ है ऊंचे स्थान से गिरने वाली जलधारा. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನ ಜಲಧಾರೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೇವೆ? ಪ್ರಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. फिर अंत में जो है बेरोक टोक. बेरोक टोक यानी कि बिना किसी रुकावट के ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು बेरोक टोक यहाँ पे कहते हैं. तो ये है इस पाठ में आने वाले कुछ मुख्य शब्द जो थे, नए शब्द जो थे, उनको मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है ना. हमने अब इस पाठ में आने वाले नए शब्दों की जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर ली और इसके साथ साथ मैंने इस पाठ का जो आशय है उसको भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसके प्रादेशिक ज्ञान का प्राप्त करना और लोगों का रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य जो क्या है वो प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव पाना और साथ ही साथ इस पाठ से छात्र यहाँ पे चेरापूंजी का परिचय यहाँ पे पावेंगे, है ना. तो ये उसका आशय हो गया. अब देखिएगा मैं इस पाठ को पढ़ते जाऊंगा, आप उसको ठीक अपनी किताबों में ठीक ढंग से देखते जाइएगा. चेरापूंजी से आया हूं, इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप पंत. मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलंग ये हरा भरा पर्वतीय नगर जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं. इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है. ऐसा हरिद्वार भी शायद ही कहीं देखने को मिले. शिलंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है. यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी, है ना. तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है. देखिएगा अब इस पाठ का जो अर्थ है वो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं. मेघालय क्या है? मेघालय यानी मेघ का अर्थ है बादल, आलय का अर्थ है घर. किसका घर? बादलों का घर. मेघ का अर्थ क्या है? बादल, है ना. आलय का घर है, आलय का अर्थ है घर. मेघों का घर है ना, उसको हम कहते हैं बादलों का घर, यानी कि मोड़गढ़ मने. वो हो गया मेघालय. मेघगढ़ आलय मेघालय यहाँ पे इसका अर्थ है. और मेघालय की राजधानी शिलंग. मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलंग है. ये हरा भरा पर्वतीय नगर. ये नगर कैसा है? एक हरा भरा ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ पर्वतीय नगर, पर्वतಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಗರ. जहां हर वक्त ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ವಾ. तो हर वक्त का है ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं. बादल ಮೋಡಗಳು क्या करते हैं? उमड़ते घुमड़ते क्या करते हैं? चारों ओर घेरे रहते हैं. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಗರ
ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ है ना। हाँ, उत्तर भारत में इतना बड़ा स्वच्छ और सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक है, वो क्या है, मेघालय यानी कि चेरापूंजी जो है वो। हाँ, ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। ऐसा हरितिमा ಇಂತ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। शिलांग से चेरापूंजी, अब शिलांग से चेरापूंजी हम जा रहे हैं। अब ये क्या है, शिलांग है। शिलांग से कहां जाना है, चेरापूंजी जाना है। तो शिलांग से चेरापूंजी जाने वाला जो रास्ता है ना। हाँ, शिलांग से चेरापूंजी जाने वाला जो रास्ता है, हाँ, इसकी दोनों ओर यानी कि इधर और इधर दोनों ओर क्या है, पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। दोनों ओर यानी कि ये जो चेरापूंजी को जाने वाला रास्ता है शिलांग से, तो दोनों ओर यहाँ पे और इधर दोनों ओर क्या है, पेड़ है, पहाड़ है ना। इधर पहाड़ भी है और पेड़ों से पटा पड़ा है, भरा पड़ा है। पेड़ है और पहाड़ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ। समझ गए ना। हाँ, फिर यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता भी कैसे है, ऊंचा नीचा, ऊंचा एक तरह, नीचा ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಪಾಕಾರ ರಾಸ್ತಾ, ಸರ್ಪಾಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। रास्ते को पार करते हुए ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ क्या दिखता है, दिखाई पड़ते हैं बादल। ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। बहती है सुहानी हवा, ಅಂತಹ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಿ ಹವಾ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಳಿದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी, कभी कभी ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಆವಾಗ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ, है ना। वर्षा की जो बूंदे हैं वो हमेशा वहां पे पड़ते ही रहते हैं, तब तक वहां पे पड़ते हैं। आवाग ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, है ना। तो इसके लिए अब मैं आप लोगों को जो सर्पाकार रास्ता है और जो मेघालय का जो प्रकृति सौंदर्य है उसको हम अब यहाँ पे देख कर आते हैं, है ना। एक छोटा सा वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। मेघालय जिसके नाम में ही है खासियत, तो सोचिए कैसा होगा ये राज्य, क्योंकि जितना खूबसूरत ये राज्य उतना ही खूबसूरत है इसका नाम। मेघ और आलय शब्द मिलकर बना है मेघालय, जिसका मतलब है बादलों का घर। भारत के उत्तर पूर्व में बसे इस शानदार राज्य को इसकी अनोखी खूबसूरती के कारण स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया है। आइए आज आपको सैर करवाते हैं मेघालय की, जिसे देख आप वहां बार बार जाना चाहोगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेघालय की राजधानी शहर है शिलोंग। पहाड़ियों पर बसा ये छोटा और खूबसूरत शहर भारत का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। हरे भरे पहाड़, खूबसूरत झरने, झीलें क्या नहीं है इस शहर में। यहाँ आपको हर वो प्राकृतिक नजारा देखने को मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। मॉनसून के दौरान जब यहाँ बारिश होती है तो पूरे शहर की खूबसूरती और निखर जाती है। यहाँ पर फिशिंग और हाइकिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैसे तो पूरे मेघालय में अनगिनत पर्यटन स्थल हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक खिंचे चले आते हैं। फिर भी यहाँ के शिलोंग, चेरापूंजी, टूरा, जोवाई नोंगपोह आदि जगहों पर घूमने लायक कई स्थानें मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ के खासी पहाड़ों में स्थित मौसिनरम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। मेघालय में आप सिर्फ करीब से बादलों की सैर ही नहीं करते, बल्कि यहाँ की हरी भरी वादियों में अपने फुर्सत के लम्हों को यादगार भी बना। मेघालय की राजधानी शहर है शिलोंग। पहाड़ियों पर बसा ये छोटा और खूबसूरत शहर
भारत का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। हरे भरे पहाड़, खूबसूरत झरने, झीलें, क्या नहीं है इस शहर में। यहाँ आपको हर वो प्राकृतिक नजारा देखने को मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। मॉनसून के दौरान जब यहाँ बारिश होती है तो पूरे शहर की खूबसूरती और निखर जाती है। यहाँ पर फिशिंग और हाइकिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैसे तो पूरे मेघालय में अनगिनत पर्यटन स्थल हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक खिंचे चले आते हैं। फिर भी यहाँ के शिलोंग, चेरापूंजी, तुरा, जोवाई नोंगपोह आदि जगहों पर घूमने लायक कई स्थानें मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ के खासी पहाड़ों में स्थित मौसिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। मेघालय में आप सिर्फ करीब से बादलों की सैर ही नहीं करते बल्कि यहाँ की हरी भरी वादियों में अपने फुर्सत के लम्हों को यादगार भी बनाते हैं। यहाँ मार्च से जून तक मौसम सुहावना रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में घूमने का अपना ही मजा है। मेघालय में रहने वाले लोग साधारण भले ही हों, लेकिन मेहमान नवाजी में वो किसी का भी दिल जीत सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर ट्राइबल लोग निवास करते हैं और इसी में से खासी जनजाति के लोग सबसे अधिक हैं। खासी जनजाति की सबसे खास बात यह है कि यह समाज पुरुष की जगह महिला प्रधान है, जहाँ महिलाओं को उत्तराधिकारी होने का विशेष अधिकार दिया जाता है। यहाँ पुरुषों को शादी के बाद अपनी पत्नियों के घरों में जाना पड़ता है और बच्चों को उनकी माओ का उपनाम दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी मेघालय घूमने जा रहे हो तो यहाँ का मॉलिनोंग गांव विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर कोई स्वच्छता को लेकर सजग है और अगर रास्ते में कोई कूड़ा पड़ा रहता है तो लोग उसे कूड़ेदान में डाले बिना आगे नहीं जाते। साफ सफाई के साथ साथ ये गांव शिक्षा के मामले में भी काफी आगे है, जहाँ की साक्षरता दर 100% है। मेघालय मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या खेतीबाड़ी पर निर्भर है। चावल और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ये राज्य फल और सुपारी के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है। साथ ही पर्यटन भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। मेघालय में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हालांकि अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में गारो, खासी और नार शामिल है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मेघालय का गोल्फ कोर्स देश के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज में से एक है। मेघालय में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम, हिंदू और सिख धर्म के लोग आते हैं। तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो में है ना मेघालय का जो रास्ता कैसा है और वहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा कैसी है उसको आप लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, समझ गए ना। हाँ, तो फिर आगे देखिएगा। हमारी जीप शिलोंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। हमारी जीप यानी कि प्रदीप पंत जी उसमें है, उस जीप में तो वो बैठे हैं। जीप शिलोंग से 53 किलोमीटर, 53 का अर्थ है 53 किलोमीटर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। कहाँ? चेरापूंजी की ओर अब वो बढ़ रही है। कहाँ से? शिलोंग से। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। जीप में अब कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एक प्रदीप पंत जी हैं, दूसरे कौन है? एक अधिकारी संगमा है और उन संगमा के 2 दोस्त यानी कि 4 लोग उस जीप में बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ। अभी जीप में बैठे हुए जीप ನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಬ್ರು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗಮ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಗಮ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। जीप में बैठे खिड़की को बंद कर रहे थे। खिड़की को बंद करते हुए इन्होंने संगमा से पूछा। कौन? लेखक पूछते हैं संगमा से। क्या पूछते हैं? क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ? जी हाँ, संगमा कहते हैं। संगमा ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। अब संगमा बताते हैं, देखिएगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा। ताज्जुब का अर्थ है यहाँ पे आश्चर्य। आप निಮಗೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಪತ್ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ? किसका उत्पादन होता है यहाँ पे? पन बिजली को क्या पता है आपको? जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा होता है। हाँ, अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ. अब प्रदीप पंत जी कहते हैं ऐसा हौदा ಹೀಗ मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮ कहते हैं ಮತ್ತೆ ಸಂಗಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा. वैसे यदि ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು यहाँ सभी गांव ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಬಿಜಿಲಿ ಸೆ ಜಗಮಗಾ ಉಠೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಜಗಮಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಸಂಗಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ನಿಹಾರ್ತೆ ಹುವೆ ಆ ಪರ್ವತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸವಿತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है. सड़क के उस पार ರಸ್ತೆಯ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ पहाड़ कोहरे से घिरी हुई है. कोहरा का अर्ಥ ಏನಂತ ಧುಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜಿನಿಂದ ಮಂಜಾಯಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है. 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय. ये जो मेघालय जो है कौन सा मेघालय जो है 3 पर्वतीय अंचलों में ये बटा है. 3 पर्वतಗಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಇದೇನಾಗಿದೆ 3 पर्वतीय ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಮೇಘಾಲಯ ಕೂಡಿದೆ. तो फिर वो कौन से हैं? पहला है खासी पर्वत, गारो पर्वत यानी कि गारो पर्वत और तीसरा है जयंतिया. कौन से है वो 3 पर्वत? एक है खासी, दूसरा है गारो, तीसरा है जयंतिया. तो इन 3 पर्वतों के अंचलों से क्या है ये मेघालय बना हुआ है ना बटा हुआ है. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಘಾಲಯ 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಖಾಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಜಯಂತಿಯಾ. इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले. तो ये 3 पर्वतीय अंचल जो है प्रांत जो है इनमें 5 जिले बने हैं है ना 5 जिले बने हैं. ಈ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಏನು 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದಾವೋ ಆ 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ ಅಂಚಲ್ ಕಿ ಅಪನಿ ಅಲಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ है. ಒಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಅವರ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪರ್ವ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದಾವೆ. ಲೇಕಿನ್ हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿವಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ हैना ಮಾತೃಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಗಿದವೆ. ಭೂಮಿ, धन, संपत्ति सब मां से बेटी को मिलती है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक में है ना क्या देखते हैं जो हमारी जो संपत्ति है पिता के बाद बेटों को दिया जाता है. पिता के बाद किसको दिया जाता है? बेटों को दिया जाता है. लेकिन मेघालय के जो 3 पर्वतीय अंचल के जो प्रांत हैं यानी कि वहां के जो 5 जिले हैं वहां हमें देखने को मिलता है कि वहां मातृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण माँ की जो धन, भूमि और संपत्ति है ये सब किसको मिलेंगे? बेटी को मिलेंगे उनके बाद. तो इस तरीके से मातृसत्तात्मक जो पारिवारिक व्यवस्था हम यहाँ पे देखते हैं. स्त्री का यहाँ वर्चस्व है. स्त्री का यहाँ पे क्या है? वर्चस्व है कि वही यहाँ पे वहाँ की बड़ी होती है.
यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। इसका एहसास, इधर अनुभव है ना, कहां से? गुवाहाटी से जब हम मेघालय की सीमा पे जाते हैं वहां से ही वो शुरू हो जाता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। तमाम दुकानों पर ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು? ಸ್ತ್ರೀಯಾ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌದಾ बेचती हैं, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಹಿಚಕ್ ಬತಿಯಾತಿ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಿ हैं। ಬೇಹಿಚಕ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು। ಯಾರು? ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು। शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शिलंग में भी दुकानों पर कौन बैठती हैं? स्त्रियां। ಶಿಲಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। शायद ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ यह ಸ್ಥಿತಿ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ। भले ही मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो, मातृसत्तात्मक व्यवस्था ना होने पर भी ಅಲ್ವಾ, ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂರ್ತಾರೆ? ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल, मणिपुर की राजधानी क्या है? कौन सी है? इंफाल जो है, में भी यही सब देखा था। ಅಂದ್ರೆ कुछ साल पहले, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಫಾಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ। यानी मां का बाजार, माफ कीजिएगा, हाँ, स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां बिक्री, वहां जिसे माइती बाजार कहते हैं। स्त्रियों का पूरा बाजार यानी कि पूरी महिलाएं ही वहां पे होती हैं। ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ बाजार ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। क्या बोलते हैं उसको? माइती बाजार कहते हैं। यानी माँ का बाजार, माँ मीन्स ताई संते, इस तरीके से वहां पे बोलते हैं। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने घर लौटती हैं। ಹಗಲು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಗ ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। हाँ, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइकी बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की भी स्त्रियां, है ना, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಬಡವ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। और अब जब ये जीप में वहां पे जा रहे थे तो उन्हें क्या दिखता है? मोड़ पर ಒಂದು ತಿರುವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೇರಾಪುಂಜಿ का छोटा सा बाजार, ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं। जो यहाँ पे जो दुकानें, जो अब यहाँ पे एक मोड़ आया, उस मोड़ पे जब एक छोटा सा बाजार वहां पे दिखाई देता है, वहां पे भी कौन बैठी हैं? महिलाएं जो दुकानों पे बैठी हैं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, फल सब्जी की दुकान हो, चाय की दुकान हो, हर एक दुकान पर कौन बैठी है? महिलाएं वहां पे बैठी दिखाई देती हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ। ಎಂತಹ ಅಂಗಡಿನೇ ಆಗಲಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಚಾಯ್ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो समझ गए ना? हाँ, तो फिर इसको माइती बाजार को दर्शाने वाला एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, उसको देख कर आते हैं, है ना?
अरे छन 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 अरे लू भाई अरबान गाड़ी में ये टाइम लगा ओके और चू लाई गाड़ी में ये तो इस पाठ का जो अगला भाग है हम अगली अवधि में देखेंगे। जो मैंने यहाँ तक बताया उससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों को मैं गृह कार्य के रूप में देता हूँ, उसको आप लिख कर लाइए, है ना। गृह कार्य हाँ, इसी से जो अब मैंने बताया उसी से संबंधित दो प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, हाँ वो है बिजली उत्पादन के बारे में। बिजली उत्पादन के बारे में, बिजली उत्पादन के बारे में, है ना। हाँ, संगमा ने क्या कहा, संगमा ने क्या कहा। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा। विद्युत उत्पादन ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗಮ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು। फिर दूसरा प्रश्न ये है माहिती बाजार, क्या है वो, माहिती बाजार के बारे में, माहिती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। 3 वाक्य लिखिए। कितने वाक्य लिखना है, 3 वाक्य आप लोगों को लिखना है। किसके बारे में, माहिती बाजार के बारे में। माहिती बाजार ಬಗ್ಗೆ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು। समझ गए ना। हाँ, तो फिर
हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिएगा। मैं इसका जो अगला भाग है आगे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।